हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको रियल नंबर्स के मेजर कैटेगरीज ऑफ नंबर सिस्टम बताऊंगा। रियल नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड मेनली इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में. और दूसरी कैटेगरी है इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स अगेन हैज बीन डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. वन इज टर्मिनेटिंग, second is non-terminating repeating. In irrational numbers there is a category called non-terminating and non-repeating. Example 22/7. और यहाँ पे का एग्जाम्पल आप ले लीजिए 3/8, 22/229/400. ये रैशनल नंबर्स है और ये इरेशनल नंबर्स है. ये टर्मिनेट भी होते हैं इसमें और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स है. वेराज इन इरेशनल नंबर्स these numbers are never ending. The division will go on unless and until you do it. Now let's start our main question. The main question is we have to express these number in decimal form. हमें ये numbers को decimal form में express करना है. ये students की basic knowledge के लिए broad categories बताया मैंने. Now let's start 3/8. First question. Now we have to divide this 3/8. Three is not divisible by 8, so we are taking 1 point. 8 3s are 24. The remainder is 6. Point is there, so we have to take 0. 8 7s are 56. Now the remainder is 4. Point is there, so we are taking again 8 5s are 40. Here we are getting 0. So our decimal form for this is 0.375 is a terminating decimal. यहाँ पे अभी एक पॉइंट देखिए, आप ये जो डिनोमिनेटर है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए. 2 और 5 से सिर्फ 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2^3 है. अगर हमें शॉर्टकट में मालूम करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम इसके डिनोमिनेटर से हम मालूम कर सकते हैं. इसका डिनोमिनेटर 8 = 2^3 है. सो डिनोमिनेटर इज in 2^n into 5^m form. So it's a terminating decimal. Now the next question, 229/400. 229/400. डबल 229/400. इसको भी हमें डिवाइड करना है इसका डेसिमल वैल्यू मालूम करने के लिए, डेसिमल फॉर्म के लिए. 229 देखिए इससे 400 से डिविजिबल नहीं है, सो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा दें. अभी देखिए आप 400 × 5 2000.
द रिमाइंडर इज 290. अगेन 290 इज नॉट डिविजिबल. यहाँ पे 290 400 से डिविजिबल नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं. 400 into 7 you will get as 2800. The remainder is 100. Again 100 is not divisible by 400, so we are adding here 0. Point is there already. Now again 400 to the 800. The remainder is 200. Again 200 is not divisible by 400, so we are adding 0. Now I am dividing this 400 into 5. Again we have get the remainder. So our answer is here 229 by 400 is in decimal form is 0.5725. This is a terminating decimal. यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर है. अब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए आप. 400, अगर हम 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा. अगर 200 को अगेन डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा. 50, 25, नाउ 5 5 5 are 25, 5 1 are 5. So 400 is equal to, the denominator is 2 1 2 3 4, 2 power 4 into 5 power 2. यहाँ पे भी देखिए आप, डिनोमिनेटर 400 जो है 2 और 5 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है. डिनोमिनेटर इज इन 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म. सो इट्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. Now the next question, 4 1 by 5. Now I will rub this and copy the next question. These are very simple questions and we have to do it. Actually this is like a reminder. We have to review our basics. Here how we can write this form? This is an improper fraction, 4 plus 1 by 5. Now we have to divide this 1 by 5. 5 divided by 1 is 5 2s are 10. Here is remainder is 0. 4 plus 0.2 is equal to 4.2. So 4 1 by 5 is a terminating decimal. यहाँ पे देखिए आप, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है. एज डिनोमिनेटर इज 5 only, hence this is a terminating decimal. Now the next question. Next question is 2 by 11. This is only like a revision for all the students. Now we have to divide this 11 ones are 11. Remainder is 9. पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप 0 ऐड कर दीजिए. 11 8s are 88. Again you will get remainder as 2. पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 कर दीजिए. 11 1s are 11. Again the remainder is 9. 0 is there, so we are taking is that 11 8s are 88. You will get the remainders like this until you do it. So what we notice here, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0.18 जो है रिपीट हो रहा है. आप डिवीजन जब तक करेंगे कंटिन्यू, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल.
यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखिए आप 11 है. 11 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 11 इज नॉट इन 2 power n into 5 power m form. So it's a non-terminating, repeating decimal. Now the next question is 8 by 125. एट बाई 125. यहाँ पे भी हमें 125 को डिवाइड करना है 8 से. डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए 0. फिर भी यहाँ पे जो है 125 इज नॉट देयर इन 80 टेबल्स. 0 ऐड कर दीजिए 0. अभी आप डिवाइड करिए 125 इंटू 6 7 7 5 35 6 125 into 6 you can take 125 into 6 750. Remainder is 50. So you have point is there. यहाँ पे आप 0 ऐड कर दीजिए. Again 125 into 4 you will get as 500. यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा. तो इसका आंसर है 0.064 is a terminating decimal. डिनोमिनेटर आप देखिए इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 125 इज इक्वल टू 5 पावर 125 का आप एलसीएम निकालिए. 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 5 पावर 3. डिनोमिनेटर इज इन 2 power n into 5 power m form. So it's a terminating decimal. Now I will copy the next question. I hope you understand this question. Now I will copy the next question from exercise 1.3 only. It's a very simple exercise. Real number chapters. Without performing division, I have to rub all this also. Without performing division, this is question number 2. Question is that without performing division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal form. Or non-terminating repeating decimals. Non-terminating repeating decimals. Thirteen by 3125. Second is 11 by 12.
Third is 64 by 455. Fourth is 15 by 1600. Fifth is 29 343. Sixth is 23 by 2 power 3 into 5 power 2. Seventh is 129 by 2 power 2 square into 5 power 7 into 7 power 5. Next, seventh question is 9 by 15. Eighth question is 36 by 100. Ninth question is 77 by 210. आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर से। इसमें देखिए सिर्फ हमें विदाउट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बगैर डिवीजन किए हमें स्टेट करना है कि ये जो रैशनल नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम 3125 13 बाई 3125 3125 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। सो हमें 2 और 5 से इसे डिवाइड करना है। पहले 5 से डिवाइड करिए। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एस यहाँ पे देखिए अब डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर जो है 3125, 1 2 3 4 5, 5 पावर 5। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर जो है 5 के फॉर्म में है, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। एज द डिनोमिनेटर is in 2 power n into 5 power m form. So it's a terminating and terminating decimal. It's a terminating decimal. Next question. इलेवन बाई 12, सेकेंड वाला क्वेश्चन। 11 बाई 12। आप यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स शुड बी इन 2 and 5। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे देखिए 12 के जो फैक्टर्स है 2 और 3 है, तो डिनोमिनेटर जो है 5n और 2m के फॉर्म में नहीं है। एज द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म, इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating repeating decimal. Now the next question. Next question is 64 by 455. Third question is 64 by 455। यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाना है। 455, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5,
7 ones are 7, 7 threes are 29, 13 ones are 30, 455 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 39 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. एज डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका जो है 2 पावर n एंड 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है. एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म. इसकी रीज़न यही है कि जो डिनोमिनेटर इसका जो है 2 पावर n और 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 15 बाई 1600. यहाँ पे हमें 1600, 15 बाई 1600 क्या फैक्टर्स निकालिए. यहाँ पे देखिए आप 2 के टेबल से 2 8 16, 2 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25. Now 5 5 are 25, 5 ones are 5. 1600 is equal to 2 power 1 2 3 4 5 6, 2 power 6 into 5 square is a terminating decimal. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है कि इसके जो फैक्टर्स है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में. मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, देखिए एज द डिनोमिनेटर इज इन 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म, इट्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. Now the next question, 29 by 343. 29 by 343. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ हमें फैक्टर्स मालूम करना है, फैक्टर्स के थ्रू मालूम करना है कि इरेशनल नंबर्स जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. आप इजी से इसको मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन. 1 2 3 4 5th क्वेश्चन, सॉरी. 29 by 343. यहाँ पे भी हमें 343 डिनोमिनेटर जो है 343 है, उसके फैक्टर्स मालूम करना है. यहाँ पे देखिए आप 7 के टेबल से आप इसको डिवाइड करके देखिए. 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49, 7 1s are 7. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 343, डिनोमिनेटर इज 7 पावर 3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal. As the denominator is not in 2 power n into 5 power m form, it's a non-terminating repeating decimal. Now the next question is 23 by 2 power 3 into 5 power 3. आप इसके डिनोमिनेटर को देख के भी कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. 23 by 2 power 3 into 5 power 2 is a terminating decimal, as the denominator
is in 2 power n into 5 power m form. Now the next question. 129 by 2 square 57. The next question is 129 by 2 square into 5 power 7 into 7 power 5. आप इसको डिनोमिनेटर को देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में 7 है, सिर्फ हमें 2 ओनली 2 या 2 विथ 5 शुड बी देयर. यहाँ पे 7 है, इसीलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. इसका रीजन ये है कि एज द डिनोमिनेटर is not in 2 power n into 5 power m form. It's a non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. Now the next question, 9 by 15. 9 by 50, 8th question. 9 by 50. यहाँ पे देखिए आप 9 by 15 है. 9 by 15 को हम 3 by 3 into 3 by 3 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगेन यहाँ पे अगर आप 3 कट कर देंगे तो यहाँ पे 3 by 5 बचेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 5 है. सो इसीलिए 9 by 15 इज ए टर्मिनेटिंग decimal. As reason इसकी है कि as the denominator is in 2 power n into 5 power m form, hence it is a terminating and repeating terminating decimal. So terminating decimal. Now the next and the last question is 36 by 100. सिर्फ आप डेसिमल को देखकर भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन टर्मिनेटिव होगा या नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग होगा. 36 by 100. यहाँ पे देखिए 100 के हमें फैक्टर्स मालूम है. 100 इज इक्वल टू 2, 50, 25, 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 100 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर स्क्वायर. यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए एज डिनोमिनेटर इज इन 2 power n into 5 power m form. It's a terminating decimal. The next and last question is 77 by 210. I hope you are understanding the questions. I request the students to revise the questions so that you get the practice. 77 by 100, 77 by 210, sorry. Now we have to make the factors of 210 like LCM. 6 divisible in 5 table. 5 4s are 20, 5 2s are 10. Again 2 table, 2 2s are 4, 2 1s are 3 7s are 21, 7 1s are 7. As the factors of denominators are 2 into 3 into 5 into 7. It's a non-terminating repeating decimal.
इसका रीज़न ये है कि एज द डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2 power n into 5 power m form, it's a non-terminating repeating decimal. Now the next question is third question. We have done 2 questions and I hope you are understanding all these questions bits. If you have any doubt you can ask me through comments. कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग रैशनल्स इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम. इस क्वेश्चन में हमें थ्योरम 1.4 यूज करना है. Question is that write the following rationals. Write the following rationals. Following rationals in decimal form. In decimal form, using theorem 1.4. Using theorem 1.4. ये 1.4 थ्योरम ये है कि 1 थ्योरम के थ्रू हमें ये मालूम होता है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 2 power n इंटू 5 power n के फॉर्म में होगा अगर वो टर्मिनेटिंग है तो. आइए हम क्वेश्चन देख के 1 by 1 प्रैक्टिस इस पर सॉल्व करेंगे. 13/25. सेकेंड क्वेश्चन इज 15/16. Third question is 23/2 power 3 into 5 power square. Fourth question is 7218 by 3 square into 5 square. Fifth question is 143 by 110. आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. 3/25. देखिए यहाँ पे हम इसको 13 को 13 लिख सकते हैं, 5 को 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. हमें जो है इसको 2 power n और 2 power n इंटू 5 power m के फॉर्म में लाना है. इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी 5 यहाँ पे है, हमें और 2 रिक्वायरमेंट है, 2 का रिक्वायरमेंट है. सो इसलिए मैं 2 स्क्वायर ले रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे मैं जब 2 स्क्वायर करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 13 इंटू 4 बाई 5 इंटू 2 पावर 2. यहाँ पे देखिए मैं 5 2 सेम है, इसलिए पावर सेम है, इसलिए मैंने इसको ये फॉर्म में लिखा. अभी नेक्स्ट बिट में आप 13 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा. जब 52 आए इसको यहाँ पे देखिए नीचे वाले फॉर्म को आप 5 2 10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. और नेक्स्ट सिस्टम में 52/100. और ये जो रैशनल फॉर्म है इसको आप अगर डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, ये 100 अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो डेसिमल्स में ऊपर आ जाएगा 0.52. ये फॉर्म को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 15/60. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ईजी से कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी हमें फैक्टर्स बनाना है. 15 एज इट इज़ रहेगा, 16 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 2 power 4 इंटू 16 को पहले आप लिख लीजिए 2 power 1 के फॉर्म में. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें 5 चाहिए क्योंकि 2 power n इंटू 5 power m के फॉर्म में लाना है. ये थ्योरम यूज़ करके करना है. ये थ्योरम यही कहता है कि मैं 2 डिनोमिनेटर शुड बी इन 2 power n इंटू 5 power m फॉर्म. सो यहाँ पे हमें 5 power 4 लेना चाहिए, 2 power 4 इंटू 5 power 4 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर 15 इंटू 625 और नीचे आप
इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं 4 के फॉर्म में। इन द नेक्स्ट स्टेप 15 और 6 25 को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको 9375 आएगा क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट 10 पावर 4, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करिए, आप इसको 9375 बाई 10 पावर 4 1 2 3 4। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.9375। चलिए अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है 23 थर्ड वाला, 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 के साथ पावर 3 है और 5 के साथ पावर 2 है, तो हमें इसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वन मोर 5 शुड बी एडेड ऑन बोथ साइड्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 23 इंटू 5, क्योंकि 2 का पावर और 5 का पावर सेम होना चाहिए हमें कन्वर्ट करने के लिए। 5 स्क्वायर इंटू 5 इन द नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप 23 इंटू 5/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। जब आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 115 है बाई 2 इंटू 5 पावर 3, 115 बाई 10 पावर 3। इसको आप यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट स्टेज में 115 बाई 1 2 3 इज इक्वल टू 0.115। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7218 बाई 7218 बाई फोर्थ क्वेश्चन 7218 बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हमें देखिए 7218 एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा एंड 9 72 9 2 ज़ा। यहाँ पे देखिए आप ऊपर रिमेनिंग हमें 802/5 स्क्वायर। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 802/5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 802 इंटू 4/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखिए, इसको लिखिए 3208 आएगा अगर आप 802 को मल्टीप्लाई करें। 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 0 का 0 4 8 ज़ा 32 3208। यहाँ पे देखिए 3208 बाई 5 2 ज़ा यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3208 बाई 10 पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर आप 3208 100 इज इक्वल टू, अगर ये हटाएंगे आप डेसिमल तो 32.08 आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेज आई विल do the next problem. The next problem is 143/110. This is also very easy question. 143/110 143/110। यहाँ पे देखिए आप 110 को कन्वर्ट करना है हमें 143/220। 22 इंटू 5 अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको 220 यही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में 143 एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए आप इसको 2 इंटू 11 इंटू 5। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको 11 से ये डिवाइड करना है। 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 33। न्यूमरेटर 13 होगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेज में 13/10 इज इक्वल टू 1.3 अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा all the questions have been completed.
Now I will do the next question, next and last question of this exercise. Then this exercise will be completed. The next and last question is, now we have to convert the given rational numbers. We have to whether check in the next question, we have to bring the decimal numbers in rational forms. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. हमें इसमें कहा जा रहा है कि गिवन डेसिमल नंबर्स को हमें रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स. Express the following decimals in the form of p by q and write the prime factors of q. और हमें also and write the prime factors. Write the prime factors of q. What do you observe? What do you observe? ये तमाम जो क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज के पिछली क्लासों में हमने किया है, इस क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं ये तमाम क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4-3. बहुत सिंपल क्वेश्चन है 4-3.123. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.1201201. एंड थर्ड क्वेश्चन इज 4.3.12. फोर्थ क्वेश्चन इज 0.63. यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चंस पे रिपीटिंग बार दिया गया है. रिपीटिंग बार का इसका ये मीनिंग ये है कि डेसिमल्स में जो है 1 2 रिपीट होंगे until and unless you do the division. Now start the question. Here first given number is 43.123. 43.123. Now we have to convert this 4 in p by q form. Now express the given number. Now express given number in p by q form. रैशनल नंबर्स में हमें p by q फॉर्म मीन्स रैशनल नंबर p by q फॉर्म. अगर आप इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 43123 बाई. इसको अगेन आप एक्सप्रेस करेंगे 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए आप 43123 बाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसको 43123 को ऐसे ही रखते हुए 10 को कैसा लिख सकते हैं 2 × 5 पावर 3. इन द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप 43123 बाई 2 पावर 3 × 5 पावर 3. देखिए ये आ गया 2 पावर n × 5 पावर m के फॉर्म में. सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल. दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. देखिए हमने इसे p by q के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया है और ये भी एक्सप्रेस कर चुके हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now again we have to bring the given question in this form only. Next question is 0. Given number is 0.1201201. Here the process is little different. यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, थोड़ा क्वेश्चन करने सॉल्व करने का. लेट x is equal to 0.1201201. यहाँ पे हमें इमेजिन करना है x की वैल्यू. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000. Now we have to multiply both sides by 1000. If you multiply both sides by 1000, 100 into x is equal to 1000 into 0.1201201. The result will be 1000x is equal to 120.120.
1 2 0 1. Now in the next step, imagine it as equation 2. In the next step we have to subtract 2 from 1. Then what will be happen? मैं ये रब कर करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसीलिए इसको यहाँ पे से करा रहा हूँ। 1000x minus x is equal to 120.1201 minus 0.120121। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो यहाँ पे 999x बचेगा। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारा स्टेज 1 2 0 1 2 00, आप यहाँ पे माइनस करिए 1 2 00 1 2 00 आएगा माइनस करने पर। इन द नेक्स्ट स्टेज x इधर ही रखिए आप 1 2 00 बाई 999। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ पे माइनस करने पे कुछ मिस्टेक है। देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे यहाँ पे 999x आएगा और यहाँ पे 120 आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेज x इज इक्वल टू 120 बाई 999। तो यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एस, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2 power n into 5 power m form. So it's a non-terminating repeating decimal. Non-terminating and repeating decimal. Then next and last question is 43.123. I hope you are understanding the questions. 43.12 यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है। इसमें भी प्रोसेस सेम है। लेट x इज इक्वल टू 43.12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43.121212। ये 1212 इज रिपीटिंग डिजिट से। सो हमारा x हो गया है, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको एज्यूम कर लीजिए आप। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। यहाँ पे देखिए हम 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि रिपीटिंग डिजिट्स जो भी रहेंगे, जितने भी डिजिट्स रहेंगे, हम अगर डिजिट 1 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट्स 2 रहेंगे रिपीटिंग तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए व्हाट विल हैपन इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 100। 43.12 इंटू 43.1212. Next is 100x is equal to 4312 into 121212. सॉरी यहाँ पे 100 आना चाहिए क्योंकि बोथ साइड्स वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 100। दैट्स राइट। इन द नेक्स्ट स्टेज, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए आप ये इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए इसको। नाउ सबट्रैक्ट 2 from 1. Then what will happen if you subtract 2 from 1? If
if you subtract 2 from 1, you will get 4369. Hundred x minus x is equal to 4312. 99x is equal to 4312. The next stage x इधर ही रहेगा 4312 by 99x. अगर यहाँ पे आप इसको प्लस मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे हमें आंसर आएगा 1423. यहाँ पे आप इसको डिवाइड करिए, आप 1423 आएगा अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में. यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ 4312 by 99. 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 4 14312 1423. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर यही है 1423 4269. Next and last question is that I will repeat this question. I think there are some mistakes in this question. 4312 as the denominator is not in 2 power n into 5 power m form. It's a non-terminating and repeating decimal. Now the next and last question is there. I will repeat this question. I think there is some mistake. I will repeat this question. 4312. Now this is given number. Now let process वही है, let x is equal to 43.12 1212. इसको इक्वेशन 1 मान लिया है मैंने. यहाँ पे देखिए नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100. यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड्स. 100 इंटू 43.12. यहाँ पे 100x हो जाएगा और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4312.1212 हो जाएगा. नाउ यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करिए सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. यहाँ पे कराता हूँ मैं, मेट कर कराने से कन्फ्यूजन हो जाना है, इसलिए यही बोर्ड पे कराता हूँ मैं. यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 4312.1212 माइनस 43.12. यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 99x आ जाएगा और दूसरे में जो है 4269 आएगा. 4269 आएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप x को यहीं रखिए 4269 डिवाइडेड बाई 99. अगेन इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे 33 आएगा और ऊपर 1423. अब ये फॉर्म में आप देखिए डिनोमिनेटर is not in 2 power n into 5 power m form. It's a non-terminating repeating decimal.
आइए अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का 0.63। if you have any problem in understanding, you please feel free to comments me given number। यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है, हम 8th और 9th में भी कर चुके हैं ये टाइप के क्वेश्चंस। लेट x इज इक्वल टू 0.63 इज इक्वल टू 0.63। यहाँ पे देखिए बार है, बार का मतलब 63 रिपीट हो रही है डिजिट्स। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए आप बोथ साइड्स। नाउ मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रिपीटिंग डिजिट्स 2 है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। यहाँ पे देखिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.63 रिपीट होगा। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100x आएगा और यहाँ पे जो है 63.63 आ जाएगा। 63 क्योंकि यहाँ पे 63 रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज में देखिए मैं यहाँ पे कराऊँगा सब्ट्रैक्ट। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए और हमने इसको जो फर्स्ट एज्यूम किया है उसे 1 एज्यूम कर लीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x क्या है हमारा, 100x क्या है 63.63 माइनस 0.63। यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है 63 ही आएगा। यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 63। इन द नेक्स्ट स्टेज x इधर ही रहेगा 63/99। अगर आप इसको फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 3 11 ज़ा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7/11। यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर 11 है। as the denominator is not in 2 power n into 5 power m form, it's a non-terminating repeating decimal, Now all the exercise 1.3 has been completed. If you have any doubt in understanding this, please give me comments. And my last message is that respect and love your parents and elders because they sacrifice lot of their lives to make you successful. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.